ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणीं। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरोदय पुष्पवन्तो चित्रो संगौतमोनुदो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 5 and text 4. Tat sadhu varyadishavartamasomna samradhito bhagavan yena pumsam yade sthito yacchati bhakti bhute ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणं तत्साधुवर्यादिशवर्तमशं न सम्रादितो भगवान् येन पुंसां हृदये स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणं तत्साधुवर्यादिशवर्तमशं न सम्रादितो भगवान् येन पुंसां हृदये स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वादिगमं पुराणं। So word meaning says, Tat, therefore, Sadhuvarya, O great one amongst the saints. Adish, please instruct. Vartam, the path. Sham, auspicious. Naha, for us. Samradhita, being perfectly served. Bhagavan, the personality of Godhead. Yena, by which. Pumsam, of the living entity. Hirdesthitaha, residing in the heart. Yachati, awards. Bhakti Pute, unto the unalloyed devotee. Jnanam, knowledge. Sa, tat, that. Tattva, truth. Atigamam, by which one learns. Puranam, authorized, old. Translation. Therefore, O great sage,
Please give instruction on the transcendental devotion service of the Lord, so that He who is situated in the heart of everyone can be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth in terms of the ancient Vedic principles, delivered only to those who are purified by the process of devotional service. Purport. As already explained in the first canto in Bhagavatam, the absolute truth is realized in three different phases, although they are one and the same in terms of the knower's capacity to understand. Right? This point को mark कर सकते हैं, in the capacity to understand. The second one, the most capable transcendentalist is the pure devotee of the Lord, who is without any tinge of fruitive actions or philosophical speculation. By devotional service only does one's heart become completely purified from all metal coverings like karma, jnana and yoga. Only in such a purified stage does the Lord, who is seated in everyone's heart with the individual soul, give instructions so the devotee can reach the ultimate destination of going back home, back to Godhead. This is confirmed in the Bhagavad Gita 10:10. Tesham satyayuktanam bhajatam. Only when the Lord is satisfied with the devotion service of the devotee does He impart knowledge, as He did for Arjuna and Uddhav. The jnanis, the yogis and the karmis cannot expect this direct cooperation of the Lord. They are not able to satisfy the Lord by transcendental loving service, nor do they believe in such service to the Lord. The bhakti process, as performed under the regulative principles of Vedic bhakti or devotion service following the prescribed rules and regulations, is defined by the revealed scriptures and confirmed by great acharyas. This practice can help the neophyte devotees to rise to the stage of raga bhakti, in which the Lord responds from within as the Chaitya Guru, or the spiritual master as superconsciousness. All transcendentalists other than devotees make no distinction between the individual soul and the super soul, because they miscalculate the superconsciousness and the individual consciousness to be one and the same. Such miscalculation by the non-devotees make them unfit to receive any direction from within, and therefore they are bereft of the direct cooperation of the Lord. After many, many births, when such a non-dualist comes to sense that the Lord is worshipable and that the devotee is simultaneously one with and different from the Lord, then only can he surrender to the Lord Vasudeva. Pure devotion service begins from that point. The process of understanding the absolute truth adopted by the misguided non-dualist is very difficult, whereas the devotee's way of understanding the absolute truth comes directly from the Lord, who is pleased by devotional service on behalf of many neophyte devotees. Vidura, at the very first instance, inquired from Maitreya about the path of devotional service, by which the Lord, who is situated within the heart, can be pleased. So now we are going to the second part, और हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट धृतराष्ट्र. नाउ इट्स अबाउट विदुर एंड मैत्रेय. तो ये एक बहुत सुंदर पर्पट है, थर्ड कैंटो भागवतम के 5th चैप्टर का वर्स नंबर 4. सो विदुर एज अ हिस्ट्री, विदुर का अपना इतिहास रहा है. हम जानते हैं महाभारत में बहुत सारे प्रमुख चरित्र हैं, उसमें से विदुर भी एक बहुत प्रमुख चरित्र रहा है. और विदुर स्वयं कौन थे? यमराज या धर्मराज, जिनको कि श्राप था मंडूक ऋषि का, जिसके कारण उनको ये विदुर का जन्म लेना पड़ा. दासी पुत्र मतलब एक निम्न कुल में जन्म लेना पड़ा. तो इतिहास इस प्रकार से था. और बहुत इम्पॉर्टेंट हम सबके लिए भी जानना कि जो लॉ ऑफ नेचर है, जो कर्मा है, वो कितना स्ट्रांग होता है. वो छोटी से छोटी चीज़ का भी रिएक्शन है इस दुनिया के अंदर. तो मंडूक ऋषि के श्राप से एक्चुअली यमराज बने थे. शूद्र या लोअर कास्ट में जा कर के या दासी पुत्र के रूप में, विदुर के रूप में आए थे. इतिहास कैसा था? मंडूक ऋषि बचपन में उनकी एक आदत थी, वो छोटे छोटे जो चींटे होते थे, है ना, जब बरसात में देखेंगे मोटे चींटे, तो उनको क्या करते थे, वो पोकिंग करते थे उसको, कोई नीडल या कोई नुकीली चीज़ लेकर के उनको मारते थे. तो बचपन में तो बच्चे बहुत कुछ करते हैं, तो बचपन में उन्होंने उस काम को किया था. ठीक है, बचपन में किया सो किया. जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद फिर वो अपना तपस्या साधना में लग गए. तो तपस्या साधना कर रहे थे, तो तपस्या साधना करते करते हुआ कि उनके साथ कि एक बार उनके पड़ोस में चोरी हुई. और जब चोरी हुई तो चोर तो पकड़े गए, लेकिन चोर के साथ साथ मंडूक ऋषि पकड़े गए, क्योंकि उनको लगा कि ये भी इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं. और जब पकड़े गए तो फिर राजा ने सज़ा सुनाई. तो भाई उनको तो बहुत कठोर सज़ा दी चोरों को, लेकिन साथ ही साथ इनको भी सज़ा सुनाई गई. जब सज़ा सुनाई गई इनको, तो इनको भालों से मारने की सज़ा सुनाई गई. इनको भालों से
मारा जाए, क्योंकि ये भी तो उन्होंने बोला नहीं मैं चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, बट फिर भी उन्होंने सुना नहीं इस बात को, उन्होंने को सज़ा दी। अब ये बात बहुत बुरी लगी मंडूक को कि भाई जब मैंने गलती नहीं की थी, मेरी गलती नहीं थी, तो मेरे को किस बात की सज़ा दी गई। तो वहाँ पे जा कर के वो इस चीज़ को जानना चाहते थे और जानते थे कि सारे जो धर्म के सिद्धांत हैं उसको चलाने वाले स्वयं यमराज हैं। तो धर्म के राज यमराज, उनके पास जा कर के पूछूंगा क्यों ऐसा मेरे साथ किया। जब उनके पास गए पूछने के लिए तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली आपने बचपन में ऐसे ऐसे कार्य किए थे और ऐसे ऐसे जब कार्य किए थे तो इसकी आपको ये सदा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो इंस्टेंटली नहीं हो सकता है मिले हर चीज़ में, हो सकता है कि कई समय बाद भी मिले, या हो सकता है बहुत समय बाद मिले, या हो सकता है कई जन्मों बाद भी मिले। तो कभी भी इसकी बात को समझ पाना आसान नहीं है कि कब किसको किस बात का दंड दिया जा रहा है मेटल नेचर के द्वारा, है कि नहीं। तो नंदलेस अब ये जब बात हुई धर्मराज ने बताया ऐसा ऐसा है, तो ये बात मंडूक ऋषि को पसंद नहीं आई। तो मंडूक ऋषि ने बोला कि नहीं, आपका जो सिद्धांत है इसको बनाने का ये सही नहीं है, गलत है। तो आप धर्मराज के पद पे बैठने योग्य नहीं हैं, है ना। तो और आपको क्या हो जाना चाहिए, दासी पुत्र बनना चाहिए, शूद्र पुत्र बनना चाहिए। और श्राप दिया और जाकर के वो विदुर। इसके इंटरनल रीज़न भी कहते हैं कि धर्मराज जो यमराज थे बहुत समय से नरक में परेशान भी हो गए थे। रीज़न क्या, क्योंकि वहाँ पे इतने लोगों को पीड़ा दी जाती है, मारा जाता है कि उनको ये चीज़ देख देख के और उनको तकलीफ़ होती थी। तो उनको लगता था मैं यही करता रहूँगा तो भगवान की भक्ति कब करूँगा। तो जस्ट फॉर अ ब्रेक, एक ब्रेक लेने के लिए भी एक रीज़न बोलते हैं, वो विदुर के रूप में आए थे। स्वभाव वही था, धर्म जानते थे, धर्म की नीतियों को जानते थे, तो उसी स्वभाव को उन्होंने बढ़ाया आगे। और बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, यही सिद्धांतों को धृतराष्ट्र को बताया, धृतराष्ट्र को समझाया बढ़ाया, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब दुर्योधन ने उनको हस्तिनापुर से निकाल दिया, बाहर कर दिया था, तो निकलने के बाद फिर वो बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गए थे। और मैंने वो प्रसंग भी बताया था आपको कि जब उनकी मुलाकात उद्धव ऋषि से हुई थी, उद्धव से हुई थी। तो उद्धव से जब मुलाकात उनकी हुई, तो उद्धव से मुलाकात के बाद वो पहुँचे मैत्री ऋषि के पास हरिद्वार में, इस स्थान पे। इस स्थान की महिमा मैं बताऊँगा, क्योंकि भागवतम का तीसरा चौथा स्कंद यहीं बोला गया है भागवतम में। अगर भागवतम का तीसरा चौथा स्कंद पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, क्योंकि उसको बोला यहीं पे गया है और उसको रिपीट अलग अलग जगह पे किया गया है। श्रीदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित ने इसको हस्तिनापुर के बाहर रिपीट किया इस बात को। इसके अलावा और भी लोगों ने बहुत जगह रिपीट किया, लेकिन प्राइमरी स्पीकिंग जो ओरिजिनल टॉक है यहाँ की है। तो जब वार्ता बढ़ती है इनकी आपस में, मैत्री ऋषि से मिलते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर वर्स है इसमें कि वो मैत्री ऋषि को भी ग्लोरीफाई करते हैं और मैत्री ऋषि को ग्लोरीफाई करते हुए बोलते हैं। तो दिस इज़ अ सर्टन एटिकेट जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मिलते हैं किसी से तो किस प्रकार से उनका हमें गुणगान करना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं विदुर मैत्रेय को, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो क्या कह रहे हैं इसमें, मो माय लॉर्ड, the great philanthropic soul travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. Purport: to be obedient to the wishes of the Supreme Lord is the natural position of humanity, but due only to past misdeeds a living being becomes averse to the sense of subordination to the Lord and suffers all the miseries of middle existence. No one has anything to do but render devotional service to the Supreme Lord Shri Krishna. Therefore, any activity other than transcendental loving service to the Lord is more or less a rebellious action against the Supreme Will. All fruitive activity, empirical philosophy and mysticism are more or less against the sense of subordination to the Lord. And any living entity engaged in such rebellious activity is more or less condemned by the laws of material nature, which work under the subordination of the Lord. Great unalloyed devotees of the Lord are compassionate toward the fallen, and therefore they travel all over the world with the mission of bringing souls back to Godhead, back to home. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead in order to deliver the fallen souls. And therefore the common man who is bewildered by the influence of the external energy of the Lord should avail himself of their association. कितनी सुंदर बात लिखी है कि नहीं।
जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। नॉर्मल लोग कैसे होते हैं? कृष्ण के प्रति विमुख होते हैं, उनका कोई भी भगवान के प्रति कोई रुझान नहीं है। दे हैव नो अट्रैक्शन फॉर कृष्ण। अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, और अधर्म का शीलन करते हैं। अधर्म का शीलन करना मतलब गलत चीज़ों का पालन करना, गलत सिद्धांतों का पालन करना, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते हैं। उनके दुखों का कारण ही उनके अधर्म है। संसार में उनके दुखों का कारण ही उनके अधर्म है, क्योंकि वो अधर्मशील कर रहे हैं, इसलिए उनको दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन आपकी क्या मानता है मैत्री ऋषि की? तो कह रहे अनुग्रहाएह चरन्ति नूनम। अनुग्रहाएह, आप चरण करते हैं। चरण मतलब चलते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं। क्यों जाते हैं अलग अलग स्थानों पे? घूमने के लिए, ट्रैवल है ना, ट्रैवल करना अच्छा लगता है उनको। ही लव्स टू गो टू न्यू प्लेसेस। नेचर से लव है उनको, नेचर को देखने जाते हैं। या बोर हो गए एक जगह बैठे बैठे तो इसलिए आए थे? नो, नेवर। नो, वो एक ही कारण से जाते हैं। इसमें एक वर्ड आता है नूनम। नूनम मतलब सर्टेनली, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्टेनली दे ट्रैवल जस्ट फॉर वन पर्पस। वाई? अनुग्रहाय, करुणा करने के लिए उन पे। क्या करुणा करनी है? भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, भगवान के भक्तों, भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति का उदय हो सके, इसके लिए ट्रैवल करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिनाउंस ऑर्डर में होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड ट्रैवल एंड प्रीच एंड एनलाइटन पीपल। जैसे नारद मुनि है, फेमस है कि नहीं? नारद मुनि भजाय वीणा राधिका रमन नामे, है ना। नारद मुनि क्या कर रहे हैं? पूरे संसार में 14 भुवन में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं भगवान के नाम का। बता रहे हैं सबको। किन लोगों को? विमुख, है ना। जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवा, जो विमुख हैं भगवान से, उनको वो क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं भगवान से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि व्यक्ति जो सेपरेट आउट हो चुका है ना भगवान से, उनको जोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जोड़ना? क्योंकि लोग क्या हैं? बहुत दुखी हैं। दे वेरी वेरी मिजरेबल। भले दिखाएं ना, दे मे बी हैविंग अ हैप्पी फेस, हैप्पी स्माइल्स, बट क्राइंग हार्ट्स। ये वो नहीं दिखा सकते अपने रील शॉर्ट्स में। दिखा सकते हैं, वो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं दिखा सकते उस चीज़ को कि मैं कितना दुखी हूँ। दे विल जस्ट शो देयर स्माइलिंग फेसेस। फोटोग्राफ भी खिंचाते हैं तो खुशी वाला चेहरा बनाते हैं ना, एवरीबॉडी स्माइल एंड से चीज़, है ना। सबसे वाला चेहरा दिखाते हैं हंसते हुए, कितने खुश हैं। द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बट मोस्ट नॉट, लाइफ इज़ नॉट अबाउट द बेस्ट मोमेंट्स, इट्स अबाउट मोस्ट मोमेंट्स। मोस्ट मोमेंट्स में क्या करते हैं आप? एंड द मोस्ट मोमेंट्स वी आर sad, unhappy, not satisfied, disgusted with this life. True, सही बोल रहा हूँ ना। This is not for observing others, but reflecting in our own life itself. कहीं ना कहीं we all have that gap. वो गैप है कि नहीं? है कि नहीं? वो गैप बहुत इंपॉर्टेंट हो गैप। और वो गैप और वो हॉलोनेस को दूर करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई प्रभुपाद कृष्ण बुक के इंट्रोडक्शन में ये बात लिखते हैं, प्रीफेस में। और एक्चुअली प्रभुपाद भी नहीं, जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं उस चीज़ को। और वो इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है उन्होंने, ऑल दैट यू नीड इन लाइफ इज़ लव। एंड लव को ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कृष्णा। वी ऑल नो, वी ऑल नीड टू हैव द लव। एंड लव फॉर होम? कृष्णा। और कृष्णा मीन्स लव, नथिंग एल्स, है ना। विंदन मधुरिमा सारम, अभी गाए थे ना, विंदन मधुरिमा सारम। सारी की सारी मधुरिमाओं का सार है कृष्णा। कृष्ण क्या है? सारी मधुरिमाओं का सार है। और इस बात को बड़े बड़े जो अध्यात्मवादी उस बात को स्वीकार हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी बचपन से मुक्त आत्मा थे। उनको कोई साधना नहीं किया, कोई भजन नहीं किया अपने को मुक्त करने के लिए, है ना। बचपन से मुक्त थे। उसका प्रमाण क्या था कि जन्म लेते ही वो भाग गए हिमालय की ओर, जंगल की ओर, है ना। यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वापयनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तरवो अभिनेदुस, है ना। भागे, भागते 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 जा रहे हैं और पीछे पीछे उनके पिताजी दौड़ रहे हैं और बोल रहे मेरे पुत्र मत भागो, मत भागो, मत भागो। लेकिन हुआ क्या? सुन ही नहीं रहे हैं। एक ही रिप्लाई जो आ रहा था उनके फादर को, वो आ रहा था इको का रिप्लाई, पुत्रेति। वो जब पुत्र पुत्र चिल्ला रहे थे
तो पुत्र ने जवाब दिए। होता ना कि हमें थोड़ा सा तो सेंसिबल या सेंसिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली सेंसिबल सेंसिटिव होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन मुक्त जीवात्माओं के लिए ये सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं लागू होते हैं। ही वॉज रियली लिबरेटेड। बोलते गए पुत्र पुत्र रुक जाओ 2 मिनट तो रुको, कम से कम एक बेसिक संस्कार की बात की इस वर्ष में। उपनयन संस्कार बोलते हैं इसको। उपनयन संस्कार तक नहीं कराया उन्होंने। उपनयन संस्कार क्यों होता है? ताकि कम से कम ब्राह्मण बन जाओ, द्विज बन जाओ, वो तक नहीं कराया है ना। हाँ, यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम, अनुपेत पेत कृत्यम नहीं करवाया। बिल्कुल पता था बंधन बांध देंगे प्रिया दोबारा से, भागते 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 भाग चलेगा। लेकिन फिर भी वो रिटर्न आए। जो भाग गया एक बार वो वापस कैसे आ सकता है? कोई माया के प्रभाव से तो आएगा नहीं वो वापस, कि माया का कुछ लोभ दिखा दो उसको। उसके आने का सबसे बड़ा कारण था कृष्णा वॉज द कॉज। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ वेरी 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 नेक्टेरियन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो नेक्टर ऐसा है कि इट कैन बी ओनली रियलाइज्ड द मोर द हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड। जैसे यहाँ पे पर्पट में प्रॉपर लिखते हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए लिखा हुआ है, बट डिवोशन सडनली जस्ट वंस हार्ट बिकम completely purified, sorry, so completely purified, complete purification of the heart. So point is the complete purification. ये एक्चुअली हो चुका था शुद्धदेव गोस्वामी के साथ, ऑलरेडी ही वॉज कम्प्लीटली लिबरेटेड, पूर्ण रूप से मुक्त थे वो। बट फिर भी आप सोचो, वाई केम बैक? बिकॉज ही गॉट द मैसेज, उनको वो मिला भगवान के स्वरूप का दर्शन। बिकॉज द फॉर्म ऑफ कृष्णा कैन अट्रैक्ट। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान का नाम इतना मीठा है, भगवान की लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि कोई भी एक मुक्त जीवात्मा भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता उनसे। इसीलिए वर्ष आता है भागवतम के अंदर, आत्मराम मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणहरि। ये वर्ष सबको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ये वर्ष 1 कैंटो 7 चैप्टर और वर्ष नंबर 10 है। आपके श्लोका टेस्ट में पूछा जाएगा आपसे। क्यों होगा? क्योंकि इस वर्ष की 2 बार एक्सप्लेनेशंस आती हैं। एक एक्सप्लेनेशन देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु का है कन्वर्सेशन, और एक बार होता है सनातन गोस्वामी के साथ। एक जगह पे महाप्रभु ने 16 या 18 टाइम्स इसको डिस्क्राइब किया अलग अलग तरीके से, और सनातन गोस्वामी के साथ 61 वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस सिंगल वर्स। बहुत इम्पोर्टेंट, आत्माराम शमन्यो, जो आत्माराम हो चुका है, न मन्यो निर्ग्रंथि, कोई ग्रंथ नहीं है उसको, कोई अट्रैक्शन नहीं है, फिर भी कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्तिम, वो भक्ति भगवान की करता है। क्यों करता है? क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि, हरि कैसे गुण है। तो हम सब इस स्थान पे आज एकत्रित हुए हैं और इतना तपस्या, इतना संघर्ष और इतना साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का अपने सेंसेस माइंड के साथ स्ट्रगल है कि नहीं? प्रसाद के बाद और स्ट्रगल है, नींद भी आ रही है, झपकी भी आ रही है कई लोगों को, किसी तरह आँख खोल के प्रयास कर रहे हैं। बट इट्स ए गुड एंडेवर। कृष्णा इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम विद इन। भगवान हम सबको अंदर से देख रहे हैं कि कितना अर्थक प्रयास कर रहे हैं हम, है ना। प्रयास को ज़रूर भगवान देखते हैं, नो इशू। आप कितना कर पाए वो चीज़ नहीं देखते हैं भगवान, क्योंकि भगवान के मेजरमेंट में हम कहीं नहीं लाई करेंगे। भगवान अगर मापदंड बना देंगे ना हमारे सामने, तो हम कभी नहीं अचीव कर सकते उसको। भगवान का बहुत एक्सट्रीम है जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है। भगवान खाली ये देखते हैं आपकी पोजीशन क्या है और अपनी पोजीशन से आप क्या बेस्ट कर पा रहे हो, बस दैट्स ऑल। एक गिलेरी है, उसका पोजीशन बेस्ट थी कि वो एक कंकड़ फेंक सकती है जाके, वो पहाड़ नहीं फेंक सकती है। लेकिन हनुमान क्या कर सकते हैं? पहाड़ भी फेंक सकते हैं जा करके, है कि नहीं? तो भगवान हमेशा उस रिलेटिविटी में देखते हैं हमें, क्योंकि रिलेटिव वर्ल्ड के अंदर है ना। तो रिलेटिव वर्ल्ड के अंदर रिलेटिविटीज़ देखा जाता है, क्या कर पा रहे हो, व्हाट बेस्ट कैन यू डू। तो अच्छी बात है, कम से कम कोई सो नहीं रहा है, आँख खोल के से बैठे। भले नींद क्यों नहीं आ रही हो किस लोगों को, कुछ नहीं बहुतों को आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अपना बेस्ट दीजिए, सुनते रहिए बस। कान में जाएगा अंदर ही प्रवेश करेगा, प्रविष्ट कर नरेंद्र ना, है ना। कान में जाके ये अंदर ही प्रवेश करेगा, ठीक है, इट गो इनसाइड। और जो फॉर्चुनेट हैं थोड़े, वो इसको और समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे। उससे और फॉर्चुनेट कौन हो सकते हैं? तो समझने के बाद इसको अप्लाई कर पाएंगे लाइफ में। So there are different degrees of fortune and we should aspire for this fortune in life। ऐसे भाग्य के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से
कि हम सब क्या कर सकें, भगवान के नाम रूप गुण लीला में समझ सकें, बिकॉज दिस इज़ अ नेक्टर, है ना। इसीलिए बोला ना, कृष्णदेव भवन्तम वंदे, राय कहते हैं मन मानस मधु करमर्पया निज पद पंकज मकरंदे। मेरा मन कैसा है, भंवरे के समान है। मन को भंवरा बनाना चाहिए, मन को कौवा नहीं बनाना चाहिए। एक कौवा है, एक भंवरा है। कौवा कहाँ जाता है, गंदी गंदी जगह जाता है। कहाँ कहाँ जाएगा कौवा, कूड़े के ढेर पे जाता है। तो मन हमारा मान लो कौवा है, तो कहाँ जाएगा बताइए, कूड़े नहीं, कूड़े में नहीं जाएगा। कूड़े के समान कुछ चीज़ें हैं संसार की, कहाँ जाएगा, हैं, इंद्र तृप्ति में जाएगा, ठीक है। और बताओ, और कहाँ जाएगा, कंफर्ट तो चलो बॉडी नीड है वो तो, ठीक है। मन कहाँ जाएगा, मन कंफर्ट में ही मन जाता है कहीं, हैं, मज़े के पीछे, मज़े के पीछे जा रहे, प्रभु जी बता रहे हैं। मतलब मज़े मारेगा वो, मन में सोचेगा मज़े की बातें। क्या सोचेंगे मज़े की बातें, मज़ा कैसे प्लानिंग करेंगे उसकी, मज़े की प्लानिंग करेंगे। अच्छा, ठीक बात है। तो और कुछ, और कोई विचार किसी मुनि संत का यहाँ पे हरिद्वार के घाट पे कैसे आर्थिक विकास किया जाए, ऐसा ठीक बात है, ऐसे प्लानिंग चलती रहती है। ये आर्थिक विकास से इंद्र तृप्ति जुड़ी हुई है, आर्थिक विकास के साथ ही इंद्र तृप्ति कनेक्शन है, और कोई अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ नहीं है जब तक अर्थ के साथ इंद्र तृप्ति नहीं जुड़ी है। क्यों मेहनत करोगे, क्यों पैसा कमाओगे अगर इंद्र तृप्ति नहीं करनी है तो बताओ। देयर हैज़ टू बी सम कॉज ना, व्हाई यू वांट टू वर्क हार्ड, सो देयर हैज़ टू बी सम कॉज। और ना, देखो सटीक पॉइंट बोला उन्होंने है ना। ये बात शंकराचार्य ने बोला है, हर अवस्था में अपनी एक रुचि है संसार में। बोलते हैं बाला अवस्था क्रीडासक्ता, बालावस्था में क्या होता है, क्रीडासक्ता। बालावस्था में जब बच्चे हैं छोटे ना, भाग दौड़ मचाई हुई है पूरी, देखोगे ना, क्रीडासक्ता। साइकिल थी उसके एक फ्रेंड की, उसी में दौड़ भाग इधर उधर। तो क्रीड़ा बच्चों को खेलने से नहीं रोक सकते आप, एंड दैट्स वेरी नेचुरल फॉर देम, दे विल प्ले। हाँ, कुछ देर रुक जा देना चाहिए जब तक क्लास चल रही है कम से कम। बालावस्था क्रीडासक्ता। आगे क्या बोलते हैं, तरुणावस्था तरुणी सकता। जब तरुण होते हैं तो तरुणी से आसक्ति होती है, और वो स्वाभाविक होती है कि नहीं। कोई कितना भी आत्म ज्ञान में स्थित हो, फिर भी उसकी आसक्ति होती है। फिर भी व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करने से क्या होता है कि अपने आंतरिक सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो तरुणी सकता। और बुढ़ापे में क्या होता है, वृद्धावस्था चिंता आ सकता। बुढ़ापे में बहुत चिंता होती है, हाय रे हाय, इतना बनाया मैंने, इतना रखा मैंने, कौन देखेगा मेरा, कौन होगा मेरे जाने के बाद, क्या होगा इसका, कौन इसका ख्याल रखेगा, मेरा क्या भविष्य होगा, है ना। बहुत सारी चिंताएं, चिंता आ सकता। इनमें से कोई भी परब्रह्म न हो सकता, इनमें से किसी को भी आसक्ति नहीं किसमें, परब्रह्म में, भगवान को जानने में। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं, बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि हम सबको भक्ति मिली है। और भक्ति मिलने से क्या है कि हम डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस मिली, हमको इतने सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। देखो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, है कि नहीं। ये कर्म, ज्ञान, योग, ये सब बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज डोंट नो एक्चुअली ये सब इसकी सही डेफिनेशंस भी नहीं पता होती हैं ये कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है, सब कुछ अनावृत करके बैठे हुए हैं भक्त, है ना। एक वर्ष है, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल न कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तम। तो वो कहते हैं कि सारी भावनाओं पे बेस्ड है भक्ति प्रो जी, इट्स ऑल सेट ऑन इमोशन। जितनी भावना है वही भक्ति है बस। तो हमने सब कुछ अनावृत कर दिया है। कर्म भी अनावृत है, ज्ञान भी अनावृत है, योग भी अनावृत है। लेकिन अनावृत करने पहले जानना पड़ेगा अनावृत किया क्या है वो। तो कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है, हु कैन डिफाइन दैट नाइसली। व्हाट्स कर्मा, हाउ डू से व्हाट्स कर्मा, कर्म क्या होता है, कर्म योग क्या होता है बताओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा जाग सको आप सब और कुछ नहीं रीज़न है। मैं बोलते रहूँगा मैं, फिर कई लोग झपकियाँ मारते रहेंगे उसी में। बताओ व्हाट्स कर्मा, कर्म योग क्या होता है, कर्म क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ, खाली एक्शंस, और भी कुछ।
बेसिकली फ्रूटिव पार्ट जुड़ा हुआ है उसके साथ, है ना, फ्रूटिव पार्ट जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य संसार में अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है, कार्य है, ये क्रिया है, याद रखिएगा, देयर इज एक्टिविटी बिहाइंड इट, दैट्स अ कर्म। ना वर्ड से ज्ञान है, ज्ञान क्या चीज़ है यहाँ पे, बताइए। गीता सबने पढ़ी है ना, गीता तो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, कर्म, ज्ञान, योग। मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, बोलो फुल से ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान है? जीव और भगवान के बीच संबंध को क्या संबंध है? तो एक भी वो भी प्रकार का ज्ञान है, बट ये कौन सा ज्ञान है, कुछ आइडिया किसी को? ये ज्ञान जिसको अनावृत करना, ये ज्ञान तो करना भी है, पता भी करना है संबंध क्या होना चाहिए। अच्छा, ये एक पार्ट हो गया उस ज्ञान का। और कोई कंप्लीट तरीके से बता सके ये ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, आत्मा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये ठीक है, देखो बहुत हद तक सही है ये ज्ञान। ठीक है, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये ज्ञान नहीं जो यहाँ बोला जा रहा है। और नहीं, अभी आए नहीं, उस पर आएंगे बाद में। अभी ज्ञान क्या है? हाँ, भगवान को जानने के लिए, परम सत्य को जानना हो। भगवान शब्द से और एग्जैक्ट वर्ड में परम सत्य यूज़ कर सकते हैं। परम सत्य के 3 पहलू होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, जिसकी सारी तलाश और साधना यहाँ पे करते हैं जितने हरिद्वार में लोग आते हैं, है ना। हरिद्वार में जितने लोग आते हैं उस निराकार निर्विशेष ब्रह्म को समझने के लिए बड़ी साधना करते हैं, गंगा जल पी करके, तपस्या करके, जो सच्चे ट्रांसडेंटलिस्ट उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक वो है, क्या है, इट्स वन लेवल ऑफ परम सत्य। दूसरा परम सत्य क्या है, इससे ऊपर जो आता है वो है एक परमात्मा के रूप में चतुर्भुज नारायण जो हम सबके हृदय में बैठे हैं, उसका दर्शन करना, उनको देखना, ये चीज़ क्या है ना, ये योग के माध्यम से होता है, योग। और अच्छे योगी मिलेंगे आपको, पहाड़ों पे जाओगे, जो वास्तविक योग पालन करते हैं वो योगी होते हैं। और वो क्या करते हैं योगी, वो बैठ करके बहुत सालों सालों तपस्या करते हैं। कई सारे योगी उनमें से होते हैं जो कई शक्तियों के लिए साधना करते हैं। कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जिसमें कि पानी पे चल लिया, हवा से भी हल्का हो गया, सोना पैदा कर दिया, राख पैदा कर दिया, कुछ जादूगरी बेसिकली, उसकी भी साधना है वो करने की। और उससे ऊंचा एक और अस्तित्व बताते हैं, वो अस्तित्व होता है भगवान को जानना, भगवान को। ये भगवान जो इतने सरल दिखते हैं हमको ना मनुष्य के रूप में, वो मनुष्य नहीं है, ये बहुत गलत समझते हैं लोग। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, वो मनुष्य समझता है मेरे को, मूर्ख है वो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं अलग हूँ। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। उसको समझने के लिए और हायर लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनना पड़ेगा, और ऊंचा जाना पड़ेगा। कई बार भक्ति बहुत सरल दिखती है, करना क्या है, खाली खाना वो पियो, भक्त संग करो, संकीर्तन, सरल सा दिखता है ना, संकीर्तन करो, थोड़ा सा नाम लो भगवान का, और थोड़ा सा गीता पढ़ लो, क्लास सुन लो, हो गया। नहीं, हमें एंडेवर लगाना पड़ता है इसमें। हम सबको धीरे धीरे साक्षात्कार होना चाहिए। नाम भगवान का क्या, नाम स्पिरिचुअल है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। सबसे पहला हमारा जो एक इंट्रोडक्शन या एक कनेक्शन भगवान से बनेगा, नाम से बनेगा पहले। इतने सारे कोर्स नाम के हैं, सब पढ़ लेने चाहिए हमें, सारे हरिनाम चिंतामणि से निकाल के चिपकाए गए, पढ़े सबने, सब पढ़ना है, एक पढ़ना है। इस पर क्विज होगा एक। तो सबको नाम के बारे में पता होना चाहिए। बोले नाम ही नहीं पता है, नाम ही नहीं पता है क्या है। बोले नाम क्या है प्रभु जी, बहुत आसान है, कृष्ण तो है, खाली राम तो है, क्या इसमें विशेषता क्या है? बहुत बहुत गहराई है इसके अंदर। कृष्ण शब्द, कृष्ण नाम स्वयं भगवान कृष्ण है। कई सरल से उदाहरण है। अगर मान लो मेरे को प्यास लगे, तो प्यास लगे तो मेरे को प्यास बुझाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक पानी चाहिए। तो जब तक वो ऑब्जेक्ट पानी नहीं मिलेगा मुझे, तब तक मेरी प्यास नहीं जाएगी। गेटिंग इट? तो पानी शब्द, जो पानी शब्द है और पानी जो वस्तु है, उसमें भेद है ना। दोनों एक क्वालिटी नहीं कैरी करते हैं, तत्व तो अलग हैं दोनों के। शब्द अलग है पानी, और जो वस्तु है पानी वो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप कृष्ण बोलते हैं
तो जो कृष्ण वास्तविक स्वरूप में है और जो कृष्ण नाम में है वो एक है। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना। तो बहुत बड़ा साक्षात्कार हो जाएगा जीवन में अगर एक बात समझ जाएं कि अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, दे वन एंड द सेम। जब ये साक्षात्कार हो जाता है तब साक्षात्कार होता है अगला, वो रूप का होता है। रूप, नाम, रूप। रूप मतलब वो व्यक्ति है कौन, हु इज दैट पर्सन, कैसे देखने में, नाम रूप। और फिर गुण, गुण कैसे हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य गुण। और फिर फाइनली लीलाएं, क्योंकि लीलाएं बहुत सस्ती लगती हैं भगवान के देखने में, लेकिन इतनी सस्ती हैं नहीं जितनी दिखती हैं। तो नाम रूप गुण लीला ये सब प्रकट होता है समय के साथ। ये पॉइंट क्यों बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द स्टेज वी ऑल हैव टू गो। और यहाँ पे जो प्रश्न इन्होंने पूछा, विदुर ने, यही प्रश्न भगवान ये मैत्री ऋषि से पूछा। और ये भगवान हम सबके हृदय में बैठ करके इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। ऐसे चतुश्लोकी गीता में 4 श्लोकों में ये वन ऑफ द वर्सेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुश्लोकी गीता भी याद करना चाहिए, है ना। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यदि मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता, है ना। अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, है ना। हर चीज़ मेरे से निकल करके आई है, हर चीज़ मैं इसका स्तोत्र हूँ। लेकिन अब बोलो, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो निकल करके भगवान सब कुछ आती है, तो फिर लोग, कई लोग कहते हैं कि वो निराकार हो चुके हैं, कोई रूप नहीं रहा, सब खत्म हो गया, ये बिकेम ज़ीरो, ये बिकेम वॉइड, क्योंकि सब कुछ निकल गया उनसे तो वो खाली हो गए, कोई रूप नहीं रह गया, कोई गुण नहीं रह गया उनके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट वर्ड्स कभी नहीं बोलते भगवान। व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड्स, बताओ कितने लोगों को याद है। हमें एकदम सब कंठस्थ होना चाहिए। गुरुकुल के बच्चों को देखोगे ना, एक के बाद एक श्लोक की धाराएं निकलती हैं, श्लोकों की धाराएं निकलनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं। डिवोटीज को होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा, ये तो बेवकूफ़ जैसे होने चाहिए। बस बताओ क्या कहना है आपका, हाँ क्या आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या हमें एकदम बेवकूफ़ जैसा होना चाहिए कि हमें प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करने के लिए एकदम, कम से कम गीता तो आनी चाहिए, कुछ आए चाहे ना आए, वेद आए ना आए, पुराण आए ना आए, ग्रंथ ना बताओ, उपनिषद ना बताओ, संस्कृत ना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम गीता तो आनी चाहिए। तो हु विल टेल द नेक्स्ट वर्स, जागो जीव जागो, बताओ कौन है। हाँ वेरी नाइस, है ना। मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत स परस्परम, चलो बोलो पीछे पीछे। मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। समझे बात को। मच्चित मद्गत प्राण, ये जो मच्चित मद्गत प्राण भगवान में कैसे रहे, गुण होंगे तब तो चर्चा करोगे ना, क्या चर्चा करोगे। रूप होगा तो चर्चा करोगे, लीला होगी तो चर्चा करोगे, कुछ है ही नहीं तो क्या चर्चा करोगे। जब कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो है, सब कुछ निराकार है, निर्विशेष, तो चर्चा करने के लिए कुछ नहीं रह गया। जीरो, जीरो पे क्या चर्चा करेंगे। आज बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, जीरो के ऊपर चर्चा करें। चलो आज एक डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं जीरो पे, क्या बोलोगे आप बताओ। खाली फालतू की बातें करोगे, बेकार की तो बात करोगे जीरो बोल के। आज कोशिश कर लेना, 2 लोग बैठना और जीरो पे चर्चा करना। अब बोलो अपने अपने, और जो बोलोगे गारंटी फालतू बोलोगे, अभी से बता दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ है नहीं। जब कुछ है नहीं तो जो बोल रहा वो क्या है, बकवास, फालतू, जस्ट द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, और कुछ नहीं है वो। तो वो कुछ होना चाहिए, हैज टू हैव सम सब्सटेंस, नाम होना चाहिए, रूप गुण लीला, ऐसा कुछ होना चाहिए, देन इट्स गोस। तो समझ लो बात को ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वर्ड्स इस चीज़ को एस्टैब्लिश करता है, कृष्ण इज द पर्सनल पर्सन। तो मद चित्त मतगत मत प्राण, समझ नहीं, सारे लाइन समझिएगा। बोधयंत, बोधयंत होता है भक्तों के बीच में आपस में एक दूसरे को परस्पर रूप से बताना। बोधयंत परस्परम, परस्परम, परस्पर मतलब कंटिन्यूस, ऐसा नहीं खाली क्लास हो गई अब सोया जाए चल गया। काफ़ी थकान हो गई प्रोजेक्ट, सुबह 4 बजे से हम लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, घिस घिस के हालत ख़राब है हमें। अब 1-2 घंटा थोड़ा विश्राम होना चाहिए। मैं अच्छे साधकों को कम विश्राम करना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम विश्राम करना चाहिए। कम से कम हरिद्वार धाम में तो कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा तपस्या करें। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा तपस्या करिए। आपको धाम का शक्ति समझ में आएगा क्या है, धाम की पोटेंसी समझ में आएगी क्या है। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी थोड़ी। तैयार हैं सब लोग? तो होना पड़ेगा भाई, तैयार नहीं कैसे। वी हैव कम हियर फॉर अ ट्रांसेंडेंटल पर्पस, फॉर द स्पिरिचुअल पर्पस, राइट।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो समय गया हमारा, नए नए भक्त आते हैं ना पहले साल में के अंदर, खूब उसको पिज़्ज़ा पास्ता चाउमीन खिला पिला के उसको माला वाला करवा के, है कि नहीं, ये तरह चिपका के रखते हैं उसको। लेकिन जीवन भर ऐसे नहीं चलेगा एक्चुअली ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आए हैं, और स्पिरिचुअल पर्पस के अंदर ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं हमको, ठीक है ना। तो कम सोना कम सोइए, कम खाना, फोर्स नहीं करना है। मतलब कोई बोले बहुत परेशान हो रहा है मुझे, अब तो सोने दो, बहुत हो गया, थक गया मैं, मतलब थक गया, हो गया मुझे, मैं समझ गया कृष्ण ही सब कुछ है, अब छोड़ दे। इट्स टू हैवी ऑन माई हेड, यू नो, बहुत हैवी हो चुका है मेरे सर के ऊपर, अब नहीं, अब मान गए, बस मान गए, अब तो कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए हमें अब। बस हमें हमारा बिस्तर चाहिए और कुछ नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी नहीं समझ में आया एक्चुअली में, बहुत डेप्थ है इसकी। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए कि द पॉइंट इज़ कि इट हैज़ टू बी सम पर्सन फर्स्ट, मत चित्त मदगत प्राण बोधयंत स परस्परम और कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य रूप से भगवान की कथा करना, बात करना, चर्चा करना, ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसके आधार पे कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तब लाइफ में सेटिस्फैक्शन आएगा और तब मन रमण करता है। हम देखो हर किसी का मन रमण करना चाहता है, इट इज़ अ वेरी नेचुरल फीलिंग फॉर एनी लिविंग एंटिटी इन दिस वर्ल्ड। किसी भी जीव के लिए स्वाभाविक है वो अपने आप को इस संसार में नहीं, एक्चुअली में रमण करना। रमण का मतलब होता है जैसे कि रमणीय स्थानों पे जाना। अब जैसे कोई लोग नेचर लवर्स होते हैं, है ना, अभी जाएंगे तो पहाड़ों पे बैठे रहेंगे, बस पहाड़ों को देखते रहेंगे, है ना, पहाड़ों में जितनी नदियाँ बह रही हैं उसको देखते रहेंगे, वहाँ पेड़ों को देखते रहेंगे, वहाँ जो पक्षी की चहचहाहट है उसको सुनते रहेंगे। हाँ, जब लस्ट लव, वहाँ बैठे रहेंगे, एंड दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम लाइक दैट ओनली, है कि नहीं। ये एक सात्विक है कि ऐसे नेचर के साथ जो लोग होते हैं कनेक्ट करते हैं अपने को, और काफ़ी समय तक इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे देखा होगा कई लोग होते हैं। तो इसको रमण कहते हैं, रमणीय। और डिग्रेड करते जाते हैं, मान लो नीचे लाते जा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो एकदम राजसिक होंगे, वो भी रमण करते हैं। उनका रमण कैसा होगा, उनका रमण होता है कि कुछ विषय वस्तु पर रमण करते रहेंगे। कोई सेंस ऑब्जेक्ट है, कोई वुमेन है, खूब रमण करेंगे उसके अंदर, कैसी सुंदर दिखने में है, कैसी है, उसके बॉडी पार्ट्स पे लोग रमण करते हैं बैठ के, रमणीय। उसके लिए रमणीय वस्तु क्या है, एक ऑपोजिट सेक्स है जो उसके ऊपर रमण कर रहा है, बैठ के रमण कर रहे हैं। बहुत लोग रमण करते हैं बैठ के, घंटों घंटों रमण कर रहे हैं, भाई कुछ करने को नहीं उसको, इज वेस्टिंग इज लाइफ। और नीचे आ जाओ, तामसिक पे आ जाओ, वो भी रमण करता है, वो उसको चरस दे दो, गांजा दे दो, बस पड़ा हुआ है मस्त, रमण कर रहा है। कुछ भी कहीं पे भी रमण कर सकता है वो, उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई विषय वस्तु उठा ली उसने, बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, कुछ करने लगेगा, बस थोड़ा सा उसको देना है, उसका खुराक देनी है उसको सुबह। और उसमें भी बहुत कैटेगरीज, अलग अलग लेवल के नशे हैं। कोई गुटखा खा के ही रमण करता है, मज़ा आ गया, क्या पान मसाला था जी, मज़ा आ गया, गजब गुटखा था, क्या वो क्या लगा रहता है वो ऐड, नहीं जाते हैं रास्ते पर ऐड लगा रहता है, यहाँ से दिल्ली जाओ तो बोलो जुबां केसरी हैं, बोलो जुबां केसरी, वाह रे वाह, वहाँ काट के कृष्ण लिखना चाहिए, बोलो जुबां कृष्ण। गुटखा खा के मैं एकदम तरोताज़ा हो गया, एकदम खुश हो गया मैं। और क्या है, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या है, छोड़ो। कहने का मतलब क्या है कि बहुत वाइड है। तो ये भी रमण है, तो भक्तों को भी तो रमण करना पड़ेगा ना, कि कहाँ नहीं बिना रमण के तो चलेगा नहीं काम। तो ये है साइंस, कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान की कथाओं में रमण करना। इसको पढ़ना चाहिए, कृष्ण बुक पूरी पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप सीक्वेंस पढ़िए जो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स अपनी जो पढ़ रहे हैं, बट रमण करने के लिए ग्रंथों में आइए, चैतन्य चरितामृत में रमण करिए। आज जब चैतन्य चरितामृत रमण करते हैं तो महाप्रभु के पीछे पीछे चलते हैं मन। खास करके साउथ इंडिया का पास टाइम पढ़ोगे तो लगेगा महाप्रभु के पीछे पीछे आप चल रहे हो। इफ यू रीड इट ना, आपको लगेगा यू आर ट्रैवलिंग बिहाइंड हिम। एक एक स्थान पे गए, अच्छा कुर्मा क्षेत्र में क्या हुआ, रामानंद राय संवाद, अरे वाह, लगे गोदावरी तट पे आप बैठे हो, यू आर द थर्ड पर्सन सिटिंग देयर एंड हियरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन रामानंद राय एंड चैतन्य महाप्रभु। मतलब फिर कहानी आगे बढ़ती है, साउथ इंडिया पहुंचते हैं, वहाँ वेंकट भट्ट के साथ महाप्रभु की मुलाकात, उन लोग के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है। सो सच ए नाइस वे ऑफ रमण, है कि नहीं, रमण करने का अच्छा। तो जब गीत ये भागवतम पढ़ते हो तो भागवतम में इतनी सारी स्टोरीज हैं, इसमें कितना कुछ रमण करने के लिए है।
तो लॉट ऑफ सब्सटेंस इज देयर। तो तुष्यंती च रमंती च, हर भक्त को होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन कृष्णा सेज दैट द वर्स व्हिच इज कोटेड हियर इज तेषाम। तेषाम, तेषाम मतलब ये सारे भक्त जिनके बारे में बताया, ये सारे भक्त, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजन करते हैं मेरा प्रीतिपूर्वक। फिर मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम। ऐसा नहीं वो रमण करते करते इस संसार में भटक रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति, वो मेरे तक पहुँचते हैं, दे कम टू मी, मेरे तक पहुँच पाते हैं। दैट इज द पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज तेषामेव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तम नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वत। भगवान ज्ञान का दीपक जलाते हैं हृदय में और बताते हैं, अरे देखो तुम कौन हो, कहाँ परेशान हो रहे हो संसार के अंदर, तुम कभी मर नहीं सकते, यू कैन नॉट डाई, यू आर इटर्नल। जिस दिन ये चीज़ समझ गए फिर हर संसार से डर शोक मोह सब खत्म हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स ओवर, फिनिश। कहने का मतलब है, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि यहाँ पे जो विदुर पूछ रहे हैं खास करके मैत्र ऋषि से, मेरे को बताइए, गिव मी द इंस्ट्रक्शन, दिशा दीजिए कि मैं कैसे वो भगवान जो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं उनको संतुष्ट कर सकूं। क्योंकि अगर वो भगवान संतुष्ट हो गए मेरे हृदय में, वो भी अंदर से बोलेंगे, वो भी अंदर से क्या करेंगे, उस नॉलेज को एनलाइटन करेंगे। हम लोग कई बार इस चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं ना, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसाद न गुति कुतो भी। तो वी हैव टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन द स्पिरिचुअल मास्टर इज प्लीज्ड, देन देयर इज सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम परमात्मा ऑल्सो विद इन द हार्ट। और परमात्मा की रेसिप्रोकेशन कैसे, दैट एनलाइटनमेंट विच कम्स फ्रॉम विद इन। हृदय में वो क्या होती है, जागृति होती है। वी गेट टू अंडरस्टैंड क्या जागृति होगी हमको, हमें ब्रह्म प्रकाश दिखेगा, तेज सा रोशनी दिखेगा, आग का गोला दिखेगा कहीं पे, ये सब नहीं होगा। यही शास्त्र, यही जो ग्रंथ थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द कॉन्शियसनेस। इसकी मीनिंग समझ में आना शुरू हो जाएगी, इसके पर्पस प्रभुपाद के समझ में आने लगेंगे। एक्चुअली हमारे लिए वेदांत सूत्र प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। Every ISKCON follower, the purpose of Srila Prabhupada is the वेदांत सूत्र। हमें इस पे खूब चिंतन करना चाहिए बैठ करके। कई मायावादी और निर्विशेषवादियों के संप्रदाय में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वेदांत के सूत्रों पे बहुत घंटों घंटों चिंतन मनन करते हैं, बड़े एंगल से सोचते हैं। वो इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल, इस एंगल से, हर एंगल से सोचते हैं। हमको क्या करना है, हमें प्रभुपाद के पर्पस को बहुत विचार करना है, क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू मेक, टू प्रे टू प्रभुपाद, एंड देन वी गेट दैट एनलाइटनमेंट, व्हाट्स द पॉइंट मेड हियर। तो कहने का मतलब है कि मिदुर वैतरेय संवाद बहुत ही दिव्य संवाद है जो कि यहाँ पे हुआ है। और मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट समरी बताऊँगा और आप सबके ऊपर है, अब आप पढ़िए उसको। नाउ रीड इट, द टाइम हैज़ कम टू रीड इट, डोंट वेट कि प्रभु जी हम योग्य नहीं है प्रभु जी इसको पढ़ने के। कई बार बड़ा लॉजिक देते हैं हम, प्रभु जी बिल्कुल योग्य, अरे तो योग्य कब बनोगे भाई। कल मैंने मॉर्निंग में दोपहर में क्लास लिया उनकी यूथ कांग्रेशन में, तो चैतन्य चरितामृत से एक पास टाइम बता रहे थे, तो वहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं एक जगह पे चैतन्य कि यार देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारा ही देश। तो कह रहे मैंने फिर वो भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी हम गुरु कैसे बन सकते हैं। मैंने कहा ऑफिशियली गुरु मत बनो, नोबडी इज सेइंग टू बिकम एन ऑफिशियल गुरु, बट गुरु के कार्य तो करो। गुरु कार्य क्या है कि यार देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण के बारे में उपदेश दो, बताओ लोगों को। हम प्रभु जी योग्य नहीं है। तो वैसे तो इस मूवमेंट में कोई योग्य नहीं इस काम के लिए है, कोई योग्य नहीं है, बट क्यों करते हैं, हमारा आज्ञा है कि महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि प्रीच, जब भगवान ने आज्ञा दे दी करो तो करो। दैट्स कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें, ह्यूमिलिटी ये है, विनम्रता ये है कि जो भगवान बोले वो करें। अगर कोई सोच रहा है कि मैं बहुत विनम्र भक्त हूँ प्रभु जी, मैं प्रचार नहीं कर सकता, तो ये आपकी फॉल्स ह्यूमिलिटी है। दैट्स योर फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब जो आज्ञा दी गई उस आज्ञा को पालन करें, उस आज्ञा को पूरा करें। दैट्स ह्यूमिलिटी, दैट्स नेचुरल ह्यूमिलिटी एक्चुअली में, दैट्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं होता है। ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन भी पढ़ना चाहो तो 13 चैप्टर भगवद गीता के 8th वर्स में लिखा है अमानित्वम अदम्भित्वम। तो अमानित्व में प्रभुपाद लिखते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स नॉट टू बी एंशियस टू बी ग्लोरीफाइड बाय समवन। वो उत्कंठा नहीं होनी चाहिए। उत्कंठा के प्रोजेक्ट में क्लास दे रहा हूँ ना, कम से कम इतनी तालियां बजनी चाहिए ना क्लास के बाद कि मैं क्या बताऊँ। उतनी तालियां सुन के मेरे को इतना अच्छा लगता है, वो
दिल में सूद कर जाता है, लगता है ना सही सेवा की मैंने। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। हाँ, ये क्राइटेरिया नहीं है इसका। तो एंक्शियस, बहुत एंक्शियस होते हैं हमें, होती कि नहीं बताओ, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। बोले चाहे ना बोले एंक्शियस नहीं होते हैं। कई लोग बहुत एंक्शियसली भी होते हैं। कई लोग मेरे को पहचाने कि सच हम्बल डिवोटी आई एम, और मैं करूँगा कुछ नहीं। नो, दैट्स नॉट द पर्पस। गेट बोल्ड, है ना, गेट फॉरवर्ड, डू समथिंग फॉर द मोमेंट, एंड ग्रेजुअली द ह्यूमिलिटी विल डिसेंड इन द कॉन्शियसनेस, है ना कि नहीं। ह्यूमिलिटी अपने आप आएगी समय के साथ। यू डोंट हैव टू आर्टिफिशियली पुट इट ऑफ। एटिकेट वाइज कुछ फॉलो करना चाहिए, नो डाउट, बट आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी इज़ नॉट गुड। नॉनदलेस गोइंग फोर्थ, इस थर्ड कैंटो के अंदर क्या थे, तो द थर्ड कैंटो ग्रेजुअली इवॉल्व्स इनटू द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न अभी आएंगे विदुर के, इसको मैत्रेय ऋषि आंसर करना शुरू करते हैं। एंड द होल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग पहलू है कि पूरी सृष्टि का जो पूरा का पूरा एक शुरुआत है, ये बहुत टेक्निकली बहुत कम पुराणों ग्रंथों में समझाया गया है। तो यहाँ पे वो मिलता है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, कैसे पूरी संरचना हुई है, कैसे 14 भुवन बने हुए हैं, और इस 14 भुवनों में किसका कैसा स्थान है। चेतना के हिसाब से स्थान दिया गया सबको, चेतना के हिसाब से, जैसे जिसकी चेतना होगी उसको वैसे स्थान दिया जाता है। भूलोक, भूलोक, भूआ, उसके ऊपर जाओगे सत्य, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ऐसे करके। तो चेतना पे, जैसे कि इस दुनिया में भी आपका जितना पैसा है वैसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वैसी लोकेलिटी में रह सकते हो, है कि नहीं। बहुत अच्छा आपके पास बहुत पैसे रखें तो कहीं हाई पॉश किसी कॉलोनी में, सोसाइटी में आप घर खरीद के रह सकते हो। पैसे नहीं है तो आपको कहीं गरीब स्थान पे रहना पड़ेगा, है राइट। यही ना होता है इस दुनिया के अंदर जितने पैसे हैं। सिमिलरली ये जो स्थान 14 भुवन बनाए, कॉन्शियसनेस के हिसाब से बनाए, चेतना के हिसाब से बनाए। जैसे जैसी चेतना होती है उसको वैसा स्थान दिया है। तो उस चेतना के हिसाब से डिस्क्रिप्शन थर्ड कैंटो पूरा अच्छे से दिखेगा आपको। और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन करते करते अवतारों के विषय में, क्योंकि आप पूरी डिस्क्रिप्शन में अवतारों को नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज ये जितने लीला अवतार होते हैं, ये समय समय पे आकर के क्या करते हैं, दे कम एंड मेंटेन दिस यूनिवर्स। और भगवान के बहुत सारे लीला अवतार हैं जिसमें वराह से शुरुआत होती है, वराह देव से, और करते करते बहुत सारे और अवतारों का वर्णन आएगा। और उसके बाद सांख्य सिद्धांत, कपिल मुनि ने क्या बताया है, वो चर्चा यहाँ पे है। उसके बाद शिव दक्ष प्रजापति का जो पूरा प्रसंग है वो यहाँ पे घटित हुआ है, घटित भी हुआ है, उसका व्याख्यान भी यहीं पे हुआ है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और फिर राजा पृथु के दिव्य गुणों के विषय में, ध्रुव महाराज के, राजा प्राचीन भरिष्यत के ऊपर, ये सारा जो तीसरा और चौथा स्कंद है ग्रेजुअली ऐसे फ्लो करता है। एंड द होल डिस्कशन इज़ वेयर एट दिस वेरी प्लेस, इसी स्थान पे है। सो थर्ड एंड फोर्थ कैंटो, ये 2 कैंटोस हमें पढ़ने चाहिए। गेट दैट एम्पावरमेंट, मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।